رکھوالا لجپال جدا رکھوالا انہوں کون مٹاون والا لجپال جدا رکھوالا انہوں کون مٹاون والا ساڑی اس سوڑے نال لگ گئی ہے ساڑی اس سوڑے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد اج سکھ متران دی بدھیری اج سکھ متران دی بدھیری کیوں دلڑی اداس کنیری اج سکھ متران دی بدھیری کیوں دلڑی اداس کنیری لولو وچ شاک چنگیری لولو وچ شاک چنگیری اج نینان لایا کیوں جھڑیاں اللہم محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ ماشاءاللہ تواڈے دوستاں دی محبتاں تواڈیاں دعاواں کیونکہ تواڈے نال ہر سال کتھے بھی حاضری تھیندی ہے ایاز مارکیٹ بھی حاضری تھیندی ہے تے اوتھے میرے کول چوکی گبول چ بھی حاضری تھیندی ہے تساں ہی اپنے چھوٹے بھرا کو جڑے میرے کول چھوٹے انہیں دا بڑا پھر آتی گرا تو یہ دعاواں دے نال انشاءاللہ اگلے مہینے عمرہ شریف دی بھی سعادت حاصل کرن دا اللہ تعالیٰ موقع دیندہ پہ انشاءاللہ عمرہ تے بھی ویسو اور دعا کریں نا کہ جس طرح آسان اترائے پروگرام پھرا ملتے کٹھے کریں تے آج میں دعا کریں نا اللہ تعالیٰ افضل خان گپانگ صاحب میرا پھرا مدینے دا سفر بھی میرے نال کٹھا کرتا ذرا بلند آواز نال آمین کوئی اسا دوہی کٹھے ونجو انشاءاللہ کوشش تو ہے کہ میری بزم دے تقریباً جتنے بھی آراکین تھے انشاءاللہ اسا کٹھے ونجو کوشش جاری و ساری ہے تو انشاءاللہ ربیع ثانی دے پہلے یا آخر دے وچ انشاءاللہ سارا پروگرام بڑھوے سی قبلہ کاری صاحب دعائیہ کی فرمیسن انشاءاللہ اسا عمرہ شریف کی سعادت ویسن تے حاضری دے حوالے نال ایک کلام میں دو شعر ولا اشرف بھائی دی فرمائش دے ایک شعر جڑا انہیں بھیجے میں پیش کرتے ہوئے میری حاضری مکمل دی درود پاک پڑھتے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پنجابی دا کلام حاضری دا کلام جتھے مدنی دا ڈیرا جندڑیے چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا جندڑیے چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਅਸੰਕਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅਸੰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਸਾਕਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਸਾਕਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਮਨ ਮਿੰਨਤ ਤਿਲਾਵਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦਾ ਨੈਣ ਤਾਫ ਕਰਨ ਬੈ ਦਿਲ ਦਾ ਵੇੜਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦਾ ਨੈਣ ਤਾਫ ਕਰਨ ਬੈ ਦਿਲ ਦਾ ਵੇੜਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਹਟੀ ਰਹਿਣ ਮਨ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਨੈਣਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਹਟੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਲ ਮਨ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਨੈਣਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਅਸੰਕਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅਸੰਕਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸਾਕਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਅਸੰਕਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਮਨ ਮਿੰਨਤ ਤਿਲਾਵਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ ਤੂੰ ਹਾਕਿਮ ਮੈਂ ਹਾਕਿਮ ਕੇ ਬੋਡੋਲਾ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ माशाअल्लाह। जनाब मोहतरम क़िबला कारी मोहम्मद बिलाल तारिक सईदी से खूबसूरत अंदाज में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की
पाक और बुलंद बारगाह में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला मोहतरम का पढ़ना अल्लाह अपनी मकबूल बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो तो भी जाग रहे हैं ज़रा मिल के बुलंद आवाज़ से कह दे सुभान अल्लाह। तो थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहा करें, ये नहीं है कि नात सुन रहे हैं तो बस ठीक है, क्यों स्टेज वालों ने हक अदा कर रहे हैं, जो आप भी साथ साथ ही शामिल हाल है। बेशक मेरा भाई साबिक दूर बैठा है, दूर बैठने से क्या होता है, जो बंदा दिल में हो तो वो तो करीब तरी होता है ना, ठीक है। भाई साबिक इतनी दूर बैठे हैं, सामने तशरीफ लाएं ताकि आपका भी मुकड़ा हम देखें। और ये जो मुकद्दर है ना, ये वाला मुकद्दर, ये चाहे जिसकी जेब में भी है ना, जो मेरे मुकद्दर में है वो निकल आएगा, ठीक है ना। तो आप सही आगे तशरीफ ले आइए ताकि आपकी दाद वहाँ से हाथ ऐसे बुलंद करके देते हैं, और क्योंकि मोहब्बत वाले हैं और अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है। मैं आगे भी पढ़ रहा था तो वहाँ से उनकी अलग ही दाद नज़र आ रही थी, क्योंकि उधर जो बैठे थे करीब करीब वो बस खामोश से बैठे थे, तो ज़रा महफिल में एक रौनक दुबाला हो जाती। अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरा मालिक आपको ढेरों बरकत अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मुझे सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी समातों की नज़र करना है, और उससे कबल मुझे टोटल 3 फरमाइशें हैं। और पहली फरमाइश चौधरी इकबाल साहब ने जो दी और भाई अफजल गोपान साहब ने मुझे हुक्म दिया, मैंने पढ़ दी। दूसरी फरमाइश पढ़ रहा हूँ और इसके बाद तीसरी फरमाइश, और उसके बाद इख्तिताम मेरी हाजिरी का हो जाएगा, ठीक है जी। तो जो तो सुनना चाहता है वो ज़रा मिल के बुलंद आवाज़ से कहेगा सुभान अल्लाह। और भाई सलीम सुने, एक मुसाफिर की दुआ जो है वो कबूल होती है और बद्दुआ भी कबूल होती है, ठीक है ना। तो सोना इसकी आवाज़ जितने जितने मास्टर हैं ना, इसमें आप खोल देना, ठीक हो। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आप एक मोहब्बत बड़ा नारा बुलंद कीजिए, मैं अपनी हाजिरी का आगाज करता हूँ। ये दूसरी फरमाइश है, और इंशाल्लाह अब आप मेरे साथ सफ़र करेंगे, और जो चेहरे मायूस बैठे हैं इंशाल्लाह उनके चेहरों पर भी निखार आएगा, क्योंकि गुलाब है, बुझा हुआ है। इंशाल्लाह अब ये जब ओपन होगा, खुलेगा तो इंशाल्लाह मुस्कुराहट भी आएगी, सुभान अल्लाह की दाद भी आएगी। एक मोहब्बत बड़ा नारा बुलंद कर दीजिए, नारे तकबीर। अगर ऐसे सुनना है तो फिर मैं सना खान को दावत दे देता हूँ, और अगर वाकई सुनना है तो मेरी एक हाथ बुलंद करके नारे तकबीर। हाँ, अभी भी हाथ नीचे, जरा दोनों हाथ मेरे लिए नहीं, जाने जाना के नाम पे दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। इस आयत मुबारक के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिसमें रब अपने महबूब को नूर कह रहा है, वाव का मतलब और, किताब मुबीन जिसमें अल्लाह कुरान को नूर कह रहा है। सुभान अल्लाह कह सकते जिसने कुरान सुना है, समझा है, वो जरा दोनों हाथ बुलंद करके कहेगा सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। इस आयत मुबारक के 2 हिस्से। पहला हिस्सा जिसमें रब अपने महबूब को नूर कह रहा है, जो तो मेरे आका को नूर मानता है, यहाँ बैठा ही वो है जो आका को इब्तिदा कर रहा हूँ। मुझे तड़पना भी आता है, तड़पाना भी आता है, ठीक है। और अभी ये जवान जो रात में मेरे साथ महफिल में थे, उन्होंने देखी माहौल क्या था, तो बस अभी तो आगाज़ हो रहा है, लेकिन मैं आपके मिजाज को समझ रहा हूँ। मुझे तो ये लगता था कि शायद ये जो बस्ती चौकी गबोल है और यारो वाल है, ये कोई यारो वाला, ये कोई मिलते जुलते लोग होंगे, लेकिन आप तो रात वालों से ज़रा थोड़े हट के, आपको ज़रा थोड़ा समझाना पड़ रहा है। रात वालों को सिर्फ कहना पड़ता था और हाथ इधर होते थे, सुभान अल्लाह की दाद होती थी, ठीक है। हमारा यही पेट्रोल है, ठीक है, यही हमारा सब कुछ। और ये अल्लाह का गवाह है कि सिर्फ खान साहब की मोहब्बत को हम आते हैं और इनका प्यार है, इतनी इज्जत दे देते हैं, इनके अहबाब इतना प्यार दे देते हैं कि हर साल जो है वो अलीपुर जतोई और ये बस्ती यारो वाला और बस्ती चौकी गबोल और अयाज मार्केट, ये हाजिरियाँ हमारी मुमकिन हो जाती। अल्लाह ताला इनकी इस मोहब्बत को, इस इखलास को, इस प्यार को अल्लाह हमेशा ताज़िर सलामत रखे। हम इसका कुछ नहीं अजर दे सकते, हम लफ्ज़ों के साथ यकीनन इनको खैराज तहसीन दे सकते हैं।
अजर मेरे मालिक ने इनको अता फरमाना है, जिनके महबूब की महफिल को ये सज बैठे। अल्लाह ताला इनकी इस काविश को अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। बस ये मेरे जो नन्हे नन्हे जवान बैठे हैं, इनसे बस गुजारिश है, क्योंकि अभी मैं एक देख रहा था, एक बच्चा जो है वो इस डंडे को पाँव के नीचे रख के लगा हुआ था, ठीक है। उधर ये नालैन मुबारक, ये तो आशिकों के सर का ताज है, ठीक है। ये हमारे पाँव में रखने वाली चीज़ नहीं है, तो इसलिए कोशिश करें कि जिस मकसद के लिए दिया है नहीं भी उठा सकते, कम अज़ कम लपेट के अपनी झोली के अंदर रख लो, पाँव के अंदर रख के उसको सीधे पदरे ना करो, आपकी मेहरबानी हो। ठीक हो गया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक मोहब्बत भरा नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर माशाअल्लाह, और बुलंद आवाज़ से नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, नारे गौसिया। फरमाइशें मुझे बहुत हैं, और भाइयों ने कहा कि जो रात में आपने कलाम पढ़ा वो कलाम हमारे किबला अफजल खान साहब ने भी मुझे हुक्म दिया, तो इसलिए मैंने वक्त को मद्देनज़र लेके चलना है। जो हो सका इंशाल्लाह वो ज़रूर पढ़ूंगा, लेकिन क्योंकि आज जो मेज़बान है, मुझे मेरी कोशिश ये होती है फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मेज़बान हो, जिसने इतनी दूर से अगर बुलाया है तो हम अपनी उसी के अंदर रहते हुए अपनी हाज़िरी पेश करें। तो आइए, मुझे अभी जो एक हुक्म हुआ कि पहले आप ये पढ़ें हमारे चौधरी इकबाल से, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ये कलाम है, और ये कलाम गालिबन कल अयाज मार्केट में मैंने मेरा ख्याल है दोपहर में पढ़ा था, तो ये मैं फिर पढ़ देता हूँ। और ये सल्लल्लाहु अलैहि की सदा है, अगर हो सके तो सब इसमें शामिल हो जाएंगे, और मिल करके हम जो है हजरत इमाम शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके 3 मिसरों से आगाज कर रहा हूँ, जो हजरत इमाम शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने 3 मिसरे लिखे। आपने फरमाया बलगल उला बे कमालिही, फिर फरमाया कशफत तुझा बे जमालिही, हासुनत ज़मीन औ खिसालिही। 3 मिसरे कहे, और चौथा मिसरा ज़हन में नहीं आ रहा, आंखों में आंसू है, और मदीने का तसव्वुर बांध लिया। मदीने से मेरे आका की सवारी आ गई, शादी का मुकद्दर जा गया, और शादी को हुजूर ने फरमाया, ऐ शादी परेशान क्यों हो? कहा आका मैंने 3 मिसरे कहे, चौथा मिसरा ज़हन में नहीं आ रहा। तेरे और मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ शादी परेशान मत हो, हमारे आका भी बड़े करीम है। कहा शादी परेशान मत हो, सुना वो कौन से मिसरे हैं? कहा बलगल उला बे कमालिही, कसफत तुजा बे जमालिही, आसुनत ज़मीन औ ग़ैसालिही। तेरे और मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आज का शायर तो गाने की टून के ऊपर नात लिखता है, और उससे काफी और रदीफ मिलते नहीं है। कुर्बान आका की जात पर फरमाया, सादी सुना वो कौन से जुमले हैं? फरमाया बलगल उला बे कमालिही, कसफत तुजा बे जमालिही, हासुनत ज़मीन औ ग़ैसालिही। देखे किस तरतीब से 3 मिसरे हो गए। फरमाया, ऐ सादी परेशान मत हो, अब इसके आगे लिख दे सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। आप भी कह सकते हैं, तो कैमरामैन भाई जरा खड़ा होकर के इस कैमरे को घुमाओ, और 1 मिनट के लिए उलमा बुजुर्ग में मान दुआ दे। बाकी का हाथ बुलंद करके हाथों को लहराते हुए सारे मिल के कहेंगे सल्लु अलैहि, सल्लु अलैहि व आलिही, अल्लाह सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, अल्लाह अलैहि व आलिही। आप भी पढ़ सकते हैं, तो जरा जवान दोनों हाथों को मेरे लिए नहीं, आका के नाम पे बुलंद करके हाथों को लहराते हुए जरा झूम झूम के सारे मिल के पढ़ लीजिए, अल्लाह सल्लु अलैहि व आलिही। पीछे वाले भी जरा झूम झूम के पढ़िए। ये शादी को मेरे आका ने जुमला था फरमाया, शादी इसके आगे लिख दे सल्लु अलैहि, अल्लाह
صلو علیہ وآلہ کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں خدا کی بھیجی کتاب ہے تو میرا تو سارا نصاب ہے تو جس کا یہ یقین ہے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے مل کے کہتے جائیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں خدا کی بھیجی کتاب ہے تو میرا تو سارا نصاب ہے تو خدا کی بھیجی کتاب ہے تو میرا تو سارا نصاب ہے تو حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں قضا کشے خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں آخری مصرے دے رہا ہوں جس نے ابھی تک بھی ہاتھ نہیں اٹھایا ابھی بھی اپنے آقا کو نہیں پکارا آقا پر درود نہیں پڑھ سکا آؤ کیمرہ مین بھائی کیمرہ گھمائے گا ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے قبلہ کاری سے نگاہ فرمائیے گا یہ آقا کے غلام جھوم جھوم کے پڑھیں گے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے صلو علیہ اللہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت زمین و خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ